गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल की जो बात की थी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, आज उसका मैं एक आपको इंडस्ट्री बेस्ड वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको एग्जैक्टली आइडिया क्लियर होगा कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल जो है वो किस तरह से वर्क करता है और इंडस्ट्री में वो कैसे यूज़ हो सकता है। राइट, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। राइट, और ध्यान रखिए कि ये जो है वो वीडियो कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं पे भी मतलब सर्च कर सकते हो कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, तो आपको इजीली वीडियोस जो है वो अलग अलग मिल जाएंगे। बट मेरे साइड से जो बेस्ट वीडियो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, and today we are an international transport operator from the whole of Europe to the UK. We have transformed our low bay warehouse into a fully automatic warehouse using Motum AGVs and Schaefer cranes. Hence, and reason why we did that is for stability, security we have with the system. So the idea to go to automation is that the warehouse is 450 meter long. Now, if you need to consolidate goods in a warehouse 450 meter long, that means that just to go and collect a pallet from the other side of the warehouse to the door, the first gate there, that was 450 plus 450. You saw our forklift drivers running 1 kilometer just to go and collect one pallet. The cost of labor is very, very expensive, especially Saturdays, Sundays, night shifts and so on. A crane doesn't cost me more during the day, night, weekend. That's one thing. Second reason, obviously, the crane, if you maintain it quite well, the crane, they never get ill. They always work. Hello, my name is Pieter van Kaasbroek. I'm CEO of Motum, AGV company based in Belgium. We offer a wide range of AGV solutions going from custom designed vehicles over automated trucks. We have a special swarm intelligent software. We have a distributed architecture which makes our vehicle solutions and our AGV systems more robust, more performant. We fully integrate with a complete SSI Schaefer offering. The system for the end customer has a return of 1 year. ये जो साइड में जहाँ पे पैलेट रखे हुए हैं वो है ASRS ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। वहाँ पे अलग अलग पैलेट्स जो है वो रखे जाते हैं और उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। So we are working today with the Motum AGVs behind us. There are quite a few reasons for that, but the most important one is the flexibility we can have from them. And it suited the best in the fact that this was a normal regular warehouse, transformed in an automated warehouse, and an AGV suited the best in what our needs were. Why have we chosen for Schaefer? I think it's quite obvious. Schaefer is for us absolutely the number one in the market. We are not specialists in automation. We are specialists in logistics. And we wanted the best company serving us long term, also very important. And we wanted stability. That is the biggest reason of why we choose for Schaefer. ओके गुड।
होप सो ये वीडियो जो है वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके गाइड करे, राइट, और इसमें से थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज आपको मिले, राइट। तो कहीं पे भी कंपनी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है लोडिंग अनलोडिंग और स्टोरेज मटेरियल हैंडलिंग के लिए, तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, राइट। तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल जो है उसके टाइप्स वगैरह हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टडी कर लिया है। तो होप सो आपको ये क्लियर होगा कि देखो ये ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कहीं पे आप इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पे भी। तो कुल मिला के AGV जो है वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ओके। तो देखो ये AGV जो है उसका नाम जो है वो क्या है, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल। तो गाइड जो है वो कोई भी तरह से कर सकते हैं, हमने गाइडेंस किस तरह से प्रोवाइड होता है वो आपको दिखाया था। तो वो जो व्हीकल जो अभी वीडियो में आपने देखे तो वो ऑटोमेटिक नहीं मूव हो रहे थे, उसको पर्टिकुलर पाथ वाइज उसको वर्क में लाया गया था कि भाई कौन सा व्हीकल कौन सा पैलेट जो है वो उठाएगा और कहाँ पे रखेगा। वो सारा कुछ प्रोग्रामिंग जो था वो दो बंदे वहाँ पे कंप्यूटर रूम में बैठ के वो सारा कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह हैंडलिंग कर रहे थे, राइट। मतलब 100 ऑफ लेबर का वर्क सिर्फ दो बंदों से कंप्लीट हो जा रहा था, राइट। तो वो बहुत ही इजी टास्क हो जाता है अगर आपके पास लेबर जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेबर कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा आपको लग रही है, और एक्यूरेंसी एज वेल एज सैटरडे संडे जैसे उसने बोला कि वहाँ पे लेबर नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से उन्होंने पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम जो थी वो लगाई थी, राइट। तो क्लियर है यहाँ पे फाइनल। और हाँ, वहाँ पे जो पैलेट्स जहाँ पे लोड अनलोड हो रहे थे व्हीकल थ्रू, वो जो पूरी सिस्टम थी वो थी ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया AGV क्या है, राइट। गाइडेंस उसका किस तरह से प्रोवाइड होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, राइट। एडवांटेज में हमने देखा था कि डिस्पैचिंग ट्रैकिंग, देखो ये डिस्पैचिंग ट्रैकिंग मतलब जो भी वहाँ पे हमने लास्ट जो वीडियो में देखा वहाँ पे सारा कुछ डिस्पैचिंग ही हो रहा था, डिस्पैचिंग हो रहा था या कहीं से कुछ लोडिंग हो रहा था वो स्टोर हो रहा था। तो वहाँ पे जहाँ पे इस तरह की सिस्टम ज़्यादा यूज़ होने वाली है, कंटिन्यूस आपका लोडिंग अनलोडिंग चलने वाला है और आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम पे आप AGV जो है ASRS सिस्टम है वो यूज़ में ला सकते हो, राइट। और उसका जो कंट्रोल है वो भी अच्छा है, और ऑपरेशनल रिलेबिलिटी इन हजार्डस, देखो यहाँ पे वर्टिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे भी लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था अगर वहाँ पे कोई बंदा जाके लोडिंग अनलोडिंग करने जा रहा है तो उस हाइट पर जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ लीडर वगैरह यूज़ करना पड़ता, राइट। तो वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता। तो उस टाइम पे इस तरह का जो अगर आपने AGV या दूसरा ASRS सिस्टम यूज़ किया हुआ है, राइट, तो वो इजी हो जाता है। एज वेल एज कुछ ऐसा एरिया है कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन जा नहीं सकता है, वहाँ पे भी AGV यूज़ हो सकता है, राइट। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है, अगर इंडस्ट्री में लगा दिया तो मतलब कुल मिला के आपको पूरा कुछ ऑटोमेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। तो देखो इसमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है वो क्या है, नाम जो है वो क्या है, ASRS। तो ASRS का मतलब होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये हम यूज़ क्यों करें, तो अभी जो लास्ट वीडियो हमने देखा वहाँ पे AGV जो था वो वर्क कर रहा था, वो मटेरियल हैंडलिंग कर रहा था, वो एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को क्या कर रहा था, शिफ्ट कर रहा था। बट अगर वही चीज़ जो है AGV कर रहा है, बट वो पैलेट जो है वो कहाँ पे रखेगा, उसका रिकॉर्ड कैसे ट्रैक होगा, पर्टिकुलर जो स्पेस है वो कैसे मेंटेन होगी, लोडिंग अनलोडिंग तो कर लिया चलो AGV ने, बट अगर लोडिंग करने के लिए जो पार्ट चाहिए, अनलोडिंग करने के लिए जो स्पेस चाहिए वही प्रॉपर नहीं होगी तो आप कैसे कर पाओगे। तो अगर आपको AGV थ्रू ऑटोमेशन में जाना है तो उसके साथ में ASRS सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कंपलसरी है, ओके। तो ASRS जो है वो क्या करती है कि बेसिक आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि आपने क्या स्टोर किया हुआ है, राइट। और रिट्राइवल मतलब देखो पहले ऑटोमेटेड स्टोरेज, तो वो क्या करती है, ऑटोमेटिक स्टोर करती है, और रिट्राइवल मतलब जब आपको चाहिए तब वो आपको रिकॉर्ड देती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर चीज़ है, वो पर्टिकुलर प्लेस पर कहाँ पे है, राइट। तो क्लियर है, ओके डन। सो फर्स्ट देखो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम प्ले अ सेंट्रल रोल इन द ऑटोमेटेड फैक्ट्री। यस ऑफ कोर्स सेंट्रल रोल प्ले कर रही है।
द ASRS नॉट ओनली कंट्रोल द इन्वेंट्रीज, मतलब ये सिर्फ इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर रही है, बट इट्स ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट। मतलब देखो ये सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख रही है, ऑल्सो अगर आपका कोई पार्ट पर्टिकुलर जगह पे प्रोसेस में है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको यहाँ से मिल जाता है कि भाई ये पार्ट जो है XYZ नंबर का पार्ट जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में है। इन अदर वर्ड्स ASRS हैज़ द एबिलिटी टू नो वेयर एवरीथिंग इज, मतलब आपका जो भी मटेरियल है वो कहाँ पे है, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ से मिल जाता है ASRS से। देखो इंडस्ट्री बड़ी होती है तो वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती है, और मैन्युफैक्चर होके वो पर्टिकुलर कौन से प्लेस पर पड़ी हुई है या कोई प्रोसेस में ये जानना है इन टाइम, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो डायरेक्टली रिकॉर्ड जो है वो ASRS से मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ASRS हैज़ द एबिलिटी टू नो वेयर एवरीथिंग इज। तो सारी चीज़ें कहाँ पे है वो जानने की क्षमता ASRS जो है उसके पास में है, राइट। तो ये टॉपिक क्लियर है, ये पॉइंट जो है वो क्लियर है, ओके गुड। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट फॉर द मैनेजमेंट टू मेक मैन्युफैक्चरिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द एक्यूरेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन। देखो आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, कहाँ से मिल रही है आपको, ASRS से मिल रही है कि भाई हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री है तो हम उसको कैसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, हमारे पास कितना टाइम है, कितने मशीन्स अवेलेबल है, कौन सी प्रोडक्ट का वर्क कहाँ पे चल रहा है। तो कुल मिला के आप पूरा प्लानिंग कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, और उसके बेस पर आप कोई भी कस्टमर के साथ टाइम बेस्ड डीलिंग कर सकते हो। आपको ड्यू डेट अगर डिसाइड करनी है कि इस ड्यू डेट तक हम आपको पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। तो ये पॉइंट उसके लिए है कि इट इज आपको कुछ भी मैनेज करना हो, डिसीजन लेना हो कि कौन सा पार्ट कब प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। तो ये पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो गया। इट कंटेन्स सेवरल रोज, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो आपने अभी वीडियो में देखा कि वहाँ पे सेवरल रोज जो थी, मतलब डिफरेंट रोज थी। स्टोरेज उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज रैक्स बोलते हैं, कि वो पर्टिकुलर एक रैक है, राइट। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बुक्स की रैक रहती है अलग अलग, राइट, वैसे ही यहाँ पे स्टोरेज रैक्स रहती है उसकी रोज, राइट। एंड स्टोरेज रैक्स एंड स्टोरेज एंड रिट्राइवल डिवाइसेस, मतलब वहाँ से वो चीज़ कैसे रिट्राइवल होगी और कैसे मतलब लोड होगी, कैसे अनलोड होगी। तो वहाँ पे रिट्राइवल डिवाइसेस भी लगे हुए होते हैं, जैसे स्ट्रेकर क्रेन। जैसे हमने देखा कि अब ये क्रेन आई और AGV से उसने क्या किया था, अनलोड किया था, वो पर्टिकुलर रैक पर गई, और वो जो थी रैक, वो रो जो थी, सपोज 3 और 4th रो पे आपको उसको अनलोड करना है, तो क्रेन जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पर जाएगी और वहाँ पे वो अनलोड कर लेगी। तो पर्टिकुलर उसका डिवाइस जो है वो पैलेट को पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँचा देगा, और वो पैलेट जो है पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँच गई, उसके बाद में उसका जो क्रेन उसका सपोज हम ऐसा बोल रहे हैं कि कन्वेयर जो था वो रिटर्न आ जाता है, राइट। तो बहुत ही ईजी हो जाता है इसके बेस में वर्क करना। तो ASRS जो है वो अगर आपने इंडस्ट्री में कहीं पे लगा दिया तो आपको पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम मिल जाती है। तो AGV के साथ ASRS ऑलमोस्ट यूज होता है, ओके। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि भाई कैसे ASRS का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, गुड। तो देखो यहाँ पे ये जो फिगर आप देख रहे हो, वीडियो में भी हमने देख लिया कि भाई कैसे ये जो था वो वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे देखो ये जो अभी जो है ये हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रही है, एक मिनट, ये जो है, ये जो जा रही है लाइंस, राइट। तो ये जो है वो क्या है, स्टोरेज रैक्स है। ये जो है वो शटल है, वो अप डाउन मतलब हो जाता है कि जहाँ पे भी आपको जाना है, कैरियज उसको हम बोल सकते हैं, राइट। उसके साथ में गाइडेंस मैकेनिज्म, ये जो देख रहे हो आप वो है गाइडेंस मैकेनिज्म। ये जो है वो कन्वेयर है, आउटपुट कन्वेयर, ओके। ये जो है वो इनपुट कन्वेयर है, मतलब कोई भी अगर आपको पार्ट AGV यहाँ पे लेके आता है और उसको आपको क्या करना है, अनलोड करना है, तो आप यहाँ पे अनलोड कर सकते हो। यहाँ पे पार्ट आ गया, उसके बाद में पर्टिकुलर रैक में जाके रख सकते हो, ओके। तो हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है ये चीज़ और वर्टिकल भी मूव करता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों साइड मूव करें, उस हिसाब से इसको वर्क करना है।
राइट। तो ये सारे सिस्टम जो है वो सिंपल स्टोरेज भी है, मतलब ऑटोमेटेड स्टोरेज भी है, और रिट्राइवल सिस्टम, आपको कहीं पे उसको ले जाना है वापस ला के रखना है तो वो भी है। मतलब इसका पूरा नाम इसीलिए ASRS रखा है, सिर्फ ऑटोमेटेड स्टोरेज नहीं रखा है, इसके साथ साथ में क्या रखा है, रिट्राइवल सिस्टम भी रखा हुआ है। ओके गुड। तो ये देखो, ये फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो कंपलसरी है, आपको ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। द इनकमिंग आइटम्स आर फर्स्ट सॉर्ट, मतलब देखो जो भी इनकमिंग आइटम्स है जिसको हमें स्टोर करना है उसको फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, सॉर्टिंग करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर कौन सी रैक में जाएगी, राइट। कौन से मतलब आपने पहले से ग्रुपिंग करके रखा होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी, राइट। तो पूरा जो है वो सॉर्टिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पैलेट असाइन कर लेते हैं। ओके, पैलेट उसकी असाइन एक बार हो जाती है, उसके बाद में देखो ये पैलेट असाइन हो गई एक बार, उसके बाद में अगर आप देखो तो द पैलेट लोड्स एंड देन राउट थ्रू वेटिंग एंड साइजिंग स्टेशन। तो वो कहाँ पे चली जाती है कि भाई वेटिंग एंड साइजिंग स्टेशन के पास चली जाती है। दे आर विद इन द लोड एंड साइज लिमिट्स और नॉट। तो वो चेक कर लेती है कि भाई हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है उसमें पर्टिकुलर लोड ही हम रख सकते हैं, उसकी एक लिमिट जो है वो पहले से सेट रहती है। तो उसके बियॉन्ड द लिमिट अगर लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई तो स्टोरेज सिस्टम जो है वो डैमेज भी हो सकती है। तो इसीलिए उसका पहले वेट, लोड जो है, साइज़ जो है, देखो पर्टिकुलर साइज़ के ही हमने रैक क्रिएट किए होंगे, अगर वो साइज़ में हमारी जो प्रोडक्ट है वो फिट होने ही वाली नहीं है तो हम डायरेक्टली असाइन कर देंगे कोई भी रैक, कोई भी स्टोरेज का जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो हमने असाइन कर दिया, बट वहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्ट फिट होने ही नहीं वाला है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो असाइन आपको इस तरह से करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की साइज़ एंड लोड जो है वो पहले से ही ASRS में जो है वो डिफाइन की गई है कि भाई पर्टिकुलर लिमिट में ही ये पार्ट जो है वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं साइज़ एंड वेट के हिसाब से, राइट। तो सॉर्टिंग उस हिसाब से करने के बाद पर्टिकुलर पैलेट जो है वो असाइन किए जाते हैं कि वो कहाँ पे जाएगा। उसके बाद में द एक्सेप्टेड वंस आर ट्रांसपोर्टेड टू दी पिकअप एंड डिलीवरी, जो भी एक्सेप्टेड है वो पिकअप एंड डिलीवरी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। ओके, विद द डिटेल ऑफ द पैलेट कंटेंट कम्युनिकेटेड टू दी सेंट्रल कंप्यूटर, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर के साथ वो कम्युनिकेट करते हुए जो भी पिकअप डिलीवरी स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर जो है वो असाइन पैलेट को स्टोरेज लोकेशन प्रोवाइड करेगा और उस हिसाब से वो रैक एंड स्टोर्स जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, तो रैक एंड स्टोर्स जो है वो ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया है सेंट्रल कंप्यूटर से, तो पैलेट जो है वो वहाँ पे मूव हो जाएगा एंड द पैलेट इज मूव फ्रॉम द PND स्टेशन। ओके, PND स्टेशन मतलब पिकअप एंड डिलीवरी स्टेशन, PND स्टेशन टू द स्टोरेज बाय स्टोरेज एंड रिट्राइवल मशीन और स्ट्रेकर कैन, मतलब वो कैसे मूव हो गए एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेकर क्रेन भी हो सकती है, कोई रिट्राइवल मशीन्स भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड है हम क्या यूज़ करते हैं। अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर एन आइटम, अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि आपको वहाँ से कोई आइटम जो है, राइट, वो उसका डेटा चाहिए, तो कंप्यूटर जो है वो मेमोरी में सर्च कर लेगा, स्टोरेज लोकेशन वहाँ पे शो कर देगा और डायरेक्ट स्ट्रेकर क्रेन जो है वो वहाँ से पर्टिकुलर पैलेट को क्या कर सकती है, रिट्राइव कर सकती है। अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आप इजीली रिट्राइव भी कर सकते हो। तो ये पूरी सिस्टम जो है ASRS वो बहुत ही अच्छी सिस्टम है और ऑटोमेटिक अगर आपको कुछ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी देखो इस स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो मेन कंपोनेंट्स जो है वो है स्टोरेज एंड रिट्राइवल मशीन, जैसे शटल क्रेन है और स्ट्रेकर क्रेन है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेकर क्रेन आपको दिखाया गया है कि क्या है वो। ओके, शटल क्रेन और स्ट्रेकर क्रेन क्या है वो आपको दिखाया गया है। वो क्या करता है, पर्टिकुलर ये जो कॉलम है अलग अलग हमने डिवाइड करके रखी हुई है, बराबर है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, राइट। ये पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी रो है
उसको वो क्या करता है, हैंडल करता है। ये दोनों साइड की रो जो है वो एक ही यहाँ पे जो स्ट्रैकर क्रेन है वो कंट्रोल करता है। सेकंड स्ट्रैकर क्रेन ये जो दो है यहाँ पे कॉलम उसकी रो को कंट्रोल करता है, और ये थर्ड जो है वो ये दोनों जो रो है राइट उसकी कॉलम को कंट्रोल करता है। मतलब पूरी कॉलम जो रहती है, देखो ये कैसा है, लाइब्रेरी में आपने रैक देखा होगा उस हिसाब से है। तो हर एक कॉलम में 3 से 4 रो जो है वो फिट की गई होती है या उससे ज़्यादा भी की गई होती है। तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमें प्लेस करना है तो वो कैसे होगा, थ्रू दी स्ट्रैकर क्रेन। ओके, तो और ये जो है वो इंटर ईजीवी को मूव करने के लिए लाइन है। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो जाएगा पर्टिकुलर, मतलब ये जो है पिक एंड डिपॉजिट स्टेशन है कि यहाँ पे कोई भी पार्ट जो है वो PND यहाँ पे हो सकता है राइट। तो आपको रखना है या यहाँ से उठाना है वो सारा कुछ ये लाइन से हो सकता है। तो ईजीवी जो है वो पर्टिकुलर PND स्टेशन पर पहुँच जाएगा। वहाँ से अगर प्रोडक्ट को कंडक्ट करनी है तो वहाँ से वो उठा लेगा, और अगर वहाँ पे डिस्पैच करनी है तो वहाँ पे वो रख देगा राइट। तो वहाँ पे रख दिया तो उसके बाद जो काम शुरू हो जाता है वो स्ट्रैकर क्रेन का है। स्ट्रैकर क्रेन जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर पैलेट को उठा के उसकी पर्टिकुलर रो जो असाइन की गई है वहाँ पे वो चला जाएगा। सपोज़ ये जो है रो वो असाइन की गई है, उसमें जो भी नंबर दिया गया है रो का और कॉलम का उस हिसाब से वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो यहाँ पे रैक नंबर भी दिए गए हैं, रैक 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक कंपनी में सेम लेआउट हो, एज़ पर रिक्वायरमेंट हम रैक यूज़ कर सकते हैं 3 या 4। ओके, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता चल गया। ट्रांसपोर्ट डिवाइस AGV एंड कन्वेयर, देखो कन्वेयर तो हर जगह होगा ही होगा, क्योंकि एक बार स्ट्रैकर या कोई भी चीज़ ने पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, बट वो अंदर मूव कैसे होगा, तो वहाँ पे कन्वेयर चाहिए। कन्वेयर होगा तो वहाँ से वो मूव हो पाएगा। तो AGV ने सपोज़ यहाँ पे PND स्टेशन पर पर्टिकुलर पैलेट को रख दिया, तो वो स्टोरेज जो है हमारा, ये जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वहाँ पे ले जाने के लिए हमारी जो क्रेन है वहाँ तक मूव कैसे होगा, तो वो कन्वेयर से होगा। तो कन्वेयर चाहिए, AGV भी चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी जगह से पार्ट जो है वो हमें PD स्टेशन तक लाना है तो वो किससे होगा, AGV से ही होगा। और कंट्रोलिंग यूनिट तो चाहिए ही, जो भी रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कंट्रोलिंग यूनिट में हो रहा है। तो ये जो थे वो थे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ASRS। ये भी लेआउट ही है कि कैसे AGV जो है वो रन कर रहा है। AGV यहाँ पे रन हो गया, उसके बाद में ये जो है वो स्टोरेज रैक्स है, यहाँ पे क्रेन है। ओके, ये आउटपुट स्टेशन है, ये सपोज इनपुट स्टेशन है। देखो ऐसा भी लेआउट हो सकता है कि यहाँ से ही इनपुट होगा, कोई जगह पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों साथ में हो। इनपुट स्टेशन यहाँ पे तो मतलब सारा जो भी है लोडिंग वो यहाँ पे आ जाएगा थ्रू दी AGV, थ्रू दी कन्वेयर। सपोज AGV यहाँ पे ही रन कर रहा है, सपोज AGV यहाँ पे ही रन कर रहा है, तो AGV क्या करेगा, पर्टिकुलर इस प्लेस पर प्रोडक्ट या पैलेट को रख देगा थ्रू दी कन्वेयर। वो पैलेट जो है वो पर्टिकुलर स्टोरेज रैक के आगे आगे आके रुक जाएगी। वहाँ से स्टोरेज रैक के बाद क्रेन जो है, क्रेन का काम शुरू हो जाएगा। क्रेन जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठा के स्टोरेज रैक में रख देगी। ओके, तो कुल मिला के पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो मतलब अगर आपको लेबर जो है वो कम करना है, लेबर का यूज़ ही नहीं करना है राइट, तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। बट इसकी बेसिक जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा है। एज वेल एज मेंटेन आपको इसको करके रखना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं हुआ तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद में आपको मतलब बहुत ही मतलब क्वेरी आ सकती है कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे थी और कैसे वो डिस्पैच हो गई। तो पूरा रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, बट रनिंग कॉस्ट इसकी बोलते हैं हम, तो रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि लेबर का यूज़ ही नहीं हो रहा है। लेबर का यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि लेबर ही नहीं है तो उसका लेबर कॉस्टिंग ही पूरा निकल गया। एक्यूरेंसी जो है वो भी 100% मिलने वाली है, क्योंकि हर एक जगह आपने पार्ट को क्या करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है राइट, और उसका रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। तो मे बी अगर कोई इंडस्ट्री ऑटोमेटिक मूव करना चाहती है तो ये सिस्टम उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दी वीडियो। देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कौन से टॉपिक हमने स्टडी किए एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो FMS क्या है वो हमने देखा था राइट। FMS के बाद में FMS
में क्या फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल रही है, राइट, वो हमने स्टडी किया। तो कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक बार याद करो तो रिवाइज हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो एक मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि एफएमएस में कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है। तो स्टार्टिंग से देखो तो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी थी, राइट, उसमें मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत कुछ था, राइट। तो लिखने को आपके पास बहुत कुछ है इसमें। उसके बाद का जो टॉपिक था वो था एफएमएस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, राइट। उसके बाद में एफएमएस के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, राइट। उसके बाद में हमने एफएमएस लेआउट देखे। तो एफएमएस लेआउट बहुत ही मतलब अच्छे से क्लियर हुआ था, 2 बार मैंने करवाया था। ओके, तो एफएमएस लेआउट जो थे वो कौन से थे। फर्स्ट जो था वो था इनलाइन लेआउट, उसके बाद में जो था लूप लेआउट था। ओके, इनलाइन लेआउट में क्या होता है, एक ही लाइन में मशीन सारे रखे हुए होते हैं। लूप लेआउट में क्या होता है, पूरे मशीन्स जो है वो एक लूप में रहते हैं। इनलाइन लेआउट जो है वो डबल वे है, बट एक ही ट्रैक रहता है वहाँ पे, एक ही ट्रैक पर इन भी होता है और आउट भी होता है, राइट। और लूप लेआउट जो है उसमें सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट होती है कन्वेयर बेल्ट की, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उसके बाद में देखा था हमने तीसरा लेआउट कौन सा था, लीडर लेआउट। अगर आपको वर्टिकलाइजेशन करना है, हॉरिजॉन्टल स्पेस आपके पास है ही नहीं, तो उस टाइम पे आप लीडर लेआउट यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में था लास्ट लेआउट ओपन फील्ड लेआउट। तो ओपन फील्ड लेआउट जो अभी हमने वो वीडियो देखा, एजीवी कहीं पे भी मूव कर रहा था, पर्टिकुलर पथ जो था वहाँ पे नहीं मूव कर रहा था। ओपन फील्ड लेआउट में क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है, प्रोसेस जो है वो फिक्स नहीं है हर बार, तो आप ओपन फील्ड लेआउट यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद में हमने देखा कि एजीवी क्या है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल क्या है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के टाइप्स डिफरेंट देखे। तो कौन से टाइप है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के। फर्स्ट जो था वो था टोइंग टाइप्स, उसके बाद में था यूनिट लोड एजीवी, उसके बाद में था पैलेट लोड एजीवी, फिर लाइट लोड एजीवी था, असेंबली एजीवी था, असेंबली लाइन एजीवी था, राइट। तो और एजीवी का कंस्ट्रक्शन देखा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। फिर एजीवी जो है उसको गाइडेंस कैसे मिलता है वो भी क्लियर हो गया था। और लास्ट में हमने देखा ASRS क्या है, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका एक वीडियो भी हमने देखा था एजीवी के साथ में। ओके, तो ASRS जो है, देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखने होंगे। शॉर्ट फॉर्म अगर क्लियर होते हैं तभी कहीं पे अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया GTU में तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो होप सो आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया होगा। एक्सरसाइज जो है, वर्कशीट जो है वो इसके बाद में मैं आपको दे दूंगा। मेल भी ऑलमोस्ट सारी वर्कशीट मैंने कर ही दी है। तो जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो वर्कशीट है वो कंप्लीट करनी है। ओके, वीडियो तो देखना ही है एज वेल एज वर्कशीट में से सपोज पहला वीडियो कंप्लीट हुआ है तो उसके बेस पर वर्कशीट में से कोई क्वेश्चन है तो वो आपको लिख लेना है। ओके, तो ये डेली बेस अगर आप वर्क करते हो तो आपको याद भी रहता जाएगा और साथ साथ में आपका वर्क भी कंप्लीट होता जाएगा। बट अगर आपने ऐसा सोचा कि भाई हो जाएगा, लास्ट में सब एक साथ में लिख देंगे, तो वो थोड़ा क्रिटिकल है। तो अभी साथ साथ में जितने भी क्वेश्चन है, देखो ये एफएमएस चैप्टर जो था उसमें से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की हम बात कर लें तो एक तो एफएमएस लेआउट थे, एफएमएस फ्लेक्सिबिलिटी थी, एजीवी था एंड ASRS था। ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 12 से मतलब 12 to 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो देखो मार्क्स जाने नहीं चाहिए, फिगर की प्रैक्टिस कर लो। ASRS अगर ड्रॉ करना हुआ तो आपने देखा कि 3D फिगर थी, एजीवी अगर ड्रॉ करना हुआ तो एजीवी के टाइप्स में 2D फिगर थी, बट एजीवी की जो फिगर थी वो थोड़ी 3D थी। तो उसमें अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 1-2 बार ड्रॉ कर लिया तो आप एग्ज़ाम में इजीली कर पाओगे। और एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है तभी मार्क्स मिलेंगे, समझो। ऐसे ही आपने ASRS कुछ भी ड्रॉ कर लिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहीं पे लिख दिया कि क्रेन है, कहीं पे लिख दिया कि ये स्टोरेज रैक है, तो ऐसे पता नहीं चलता है। जैसे इसमें फिगर थी वैसी की वैसी 3D फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, और इसके बाद का जो चैप्टर है वो है ग्रुप टेक्नोलॉजी। अभी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर और एफएमएस, राइट। तो इंट्रोडक्शन में से शायद सिम विल पूछ ले तो 7 मार्क्स का वो चैप्टर है, 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो टोटल 21 मार्क्स का हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड CAPP है। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड CAPP में से 100% 2 क्वेश्चन जो है वो आएगी ही आएगी। ग्रुप टेक्नोलॉजी में कोडिंग सिस्टम रहती है, तो कोडिंग सिस्टम में से एक क्वेश्चन रहता है, और CAPP
का एक क्वेश्चन रहता ही है, तो 2 क्वेश्चन हो गए उसमें से भी, तो वो भी 14 मार्क्स का चैप्टर है। ओके, तो वो हम 4 से 5 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि जो टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये फैसिलिटी जो है वो अच्छी है। ओके, तो ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।